रिलायंस के जितने भी हमारे पास जियो के मोबाइल फोन है सब चेंज करो, किसी और के खरीदो, चाहे आइडिया के लो, चाहे एयरटेल के लो, चाहे वोडाफोन के ले, जिसके लो, लेकिन रिलायंस की कमर तोड़नी है। इसलिए रिलायंस का जियो लेना इस्तेमाल करना बंद करो, चाहे जो हो जाए। इसके अलावा रिलायंस का पेट्रोल लेना बंद करो। पेट्रोल पंप जितने भी हैं रिलायंस के, किसी से पेट्रोल खरीदने की जरूरत नहीं है। रिलायंस के जितने भी उत्पादन हैं, कोई उत्पादन उसका खरीदने की नहीं है। And remember, if you purchase your insurance online, we charge you less, 10% less. Happy New Year! और इसके साथ साथ ये रामदेव, इस रामदेव के जितने भी उत्पादन हैं वैसे ही बिल्कुल बेकार है। 60% से ज्यादा तो कचरा ही है, और गाय और गोबर ही खिला रहा, और क्या कर रहा है वो। इसको बंद करो, इसको बंद करो बिल्कुल। तो रामदेव के जितने प्रोडक्ट हैं इनको लेना बंद करो। मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि रामदेव का पैसा, अधिकतर पैसा आरएसएस के लिए हथियार खरीदने में काम आ रहा है। ये समझो तुम इस बात को। Here in the crowded Nehru Nagar Basti of Mumbai, which is a red zone and a virus hotspot, volunteers of the RSS are actually here risking their own lives at the front line like so many other good Samaritans, and are helping Mumbai Municipal Corporation with screening, testing, data collection, and urging people to step out and get tested and also provide information. आरएसएस का संगठन सेवा भारती दिल्ली में लगातार गरीबों की मदद कर रहा है, और सेवा भारती के अभियान की भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने तारीफ की है। I want to congratulate the Seva Bharati Delhi organization for doing such amazing work over the years, and the initiative that they're taking now to get volunteers from all the best schools in Delhi to go and do Seva drives and help other people. So I just want to say that do it with all your heart, do it with absolute pure intent, and helping another life, helping another soul is the biggest work that you can do. So I wish you all the best, safety and health as well. God bless you all, you're doing tremendous work. तो हमारे पैसे से हथियार खरीदे जा रहे हैं, हमारे ही पैसे से हमारे खिलाफ प्रचार किया जा रहा है। इसलिए ये जो दुश्मन हैं इनकी हम कमर तोड़ेंगे, रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे। और ध्यान रखना, जिसकी रीढ़ टूट जाती है कभी सीधा खड़ा नहीं हो पाता। ये हमें काम करना है, ये काम हम ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं करेगा। मधुबनी से खबर है, बिहार के मधुबनी में पुलिस की टीम पर हमला हुआ है। पुलिस को सूचना मिली थी कि तबलीगी जमात में शामिल हुए कुछ लोग मधुबनी की इस मस्जिद में पहुंचे, जिसके बाद पुलिसकर्मी जांच करने मस्जिद पहुंचे तो उन पर हमला कर दिया गया। ये हमारे पास जानकारी आ रही है, और पुलिस पर पथराव और फायरिंग की गई है। तो देखिए, अपने आप में बेहद शर्मनाक घटना। Now police has been attacked by locals in Uttar Pradesh's Kannauj. 3 policemen have been injured during the stone pelting by locals in Kannauj after receiving inputs that Friday namaz was being offered. Cops had gone to the area when they were attacked by the locals there. 30 people have been booked for rioting and violating lockdown in Godhra after they pelted stones at police officers who had gone to seal off a containment area. Godhra has been witnessing a steady rise in the number of COVID-19 cases so far. Why was that happening at Dharavi in Mumbai? Take a look at these images that we are putting out on your television screen. This is Dharavi. Now a group of young men abused policemen when they were told to follow lockdown and stay at home. The youth then ganged up on the police and started threatening police. It didn't stop just at threatening the police. A mob assembled, and then this group pelted stones and hurled abuses at the police personnel on duty. From Aurangabad, where health workers have now been attacked. Sham, what happened? Who were these people? And what was the reason behind this attack, where even the police officers and health workers were both beaten and chased? The latest case, viewers, has emerged from Muradabad in Uttar Pradesh, where these people had just gone, which included some doctors and medical staff. So it was a team that just went to Muradabad's Nawabganj area to take 2 suspected cases of COVID-19, so that if they are found to be positive, they don't spread it to other people in that area. Unfortunately, these people were brutally attacked by a mob out there. जैसा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, और जैसे सूचना मिली थी कि लोग इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ पे, तो ये लोग सिर्फ बोलने के लिए गए थे कि आप लोग घरों में बैठे। ये लोगों को मौका भी नहीं मिला बोलने का।
उससे पहले 2 पुलिसकर्मियों को जो आगे जा रहे थे उनको उन्होंने पकड़ लिया और उनको चक्कू और लाठियों से मारने की कोशिश करी। जब पुलिस फोर्स पहुंची तब वो लोग भागे वहाँ पर। हाँ, मतलब उनकी मंशा जो ऐसी ही लग रही है, क्योंकि कोई भी चक्कू लेके क्यों बैठेगा या लठ लेके क्यों बैठेगा, वो पूरा मतलब योजना से ही बैठे थे। 108 से कॉल आई थी, सर ने हमें टीम बना के भेजा था वहाँ पे कोरोना के पेशेंट उठाने के लिए। जब वहाँ पे पहुंचे तो डॉक्टर लोग कुछ वहाँ पे खड़े थे, हमारी सुरक्षा में चंद सिपाही 4 लोग थे, जिन लोगों को बोलते हैं आपकी सुरक्षा में ये लोग खड़े हैं। वहाँ पे जैसे पहुंचे तो डॉक्टर साहब ने आवाज लगाई, उनसे वो घर से आए पेशेंट निकल के, गाड़ी में बैठ चुके थे कुछ लोग। उसके बाद में जैसे वो बैठे तो एकदम से काफी भीड़ आ गई, हजारों की तादाद में निकल के सबने आवाज लगा दी अपने आस पड़ोस से। तैयार तो पहले से ही वो लोग, उन्होंने एकदम कहा बोले गाड़ी में से उतरो। जब पत्थर बरसाने चालू करे तो सर हम अपनी जान बचा के भागे। कुछ लोग हमारे डॉक्टर साथी वहाँ पे पकड़ लिए गए हैं। मेरे EMT को कुछ काफी गहरी चोटें भी आई हैं, गुम चोटें आई हैं। From Maharashtra to Madhya Pradesh, stone pelting has been reported on police by corona lockdown violators in Indore. These are pictures that are coming in and you can see those people chasing away the police. 7 accused in this case have been arrested. Well, in UP, after 2 residents of Bareilly had attacked policemen who were trying to enforce lockdown, cops have now punished them and lathi charged the mob of almost 400 people who tried to attack 25 cops. The violators also tried to set ablaze a police post. मामला यूपी के बरेली का है, जहां मुस्लिम बहुल इलाके में भीड़ के तांडव से पूरा देश हिल गया। आरोप है कि मरकज से जुड़े जमातियों को खोजने के लिए 2 पुलिसकर्मी गांव में पहुंचे थे, जिससे गांव वाले भड़क उठे और सैकड़ों की भीड़ लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाती हुई धमक पड़ी। और फिर जो कुछ हुआ वो मंजर दिल दहला देने वाला था। अचानक हुए हमले में ASP अभिषेक वर्मा को भी चोटें आईं। 4 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए। हर व्यक्ति को समझाओ, अपने दोस्तों को समझाओ, रिश्तेदारों को समझाओ, अपने बच्चों को समझाओ। ये लड़ाई है, हम लड़ाई के मैदान में हैं। हम कोई बैठे नहीं हैं यहाँ पे, कोई पार्क में सैर मनाने नहीं आए हैं, हम कोई पिकनिक करने नहीं आए हैं। हम लड़ाई में हैं और लड़ाई की क्या रणनीति होनी चाहिए वो हमें अपनानी पड़ेगी और उस रणनीति का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। जिंदाबाद।